visible enough? I think yes. Okay. Let's create a poll. A question for you people. Termination codon known as okay, option 1, let's keep it as missense mutation. Okay. Second, nonsense mutation. Okay. Starting the timer. I'm going to revise BTR or BGY. Okay. ये भी ख़त्म कर दिया, बेसिक भी हो गया, अभी अर्ली प्रेगनेंसी यूएसजी. So early pregnancy USG, there is a gestational sac. Gestational sac जो होता है ना, we can see on TVS 4.5 week में, and TAS it's seen in the 1 week. Intradecidual sign, double decidual sign. Double decidual sign में क्या दिखेगा? We'll see capsularis and parietalis. ओके, सो जेस्टेशनल सैक दिखता है हमको TVS पे 4.5 वीक में, एंड TAS में वी विल जस्ट ऐड +1 वीक इन इट, सो दैट बिकम्स योर जेस्टेशनल सैक. नेक्स्ट इज इंट्राडेसिडुअल साइन एंड डबल डेसिडुअल साइन. there's a double decidual sign. स्पेस करते हैं, डबल डेसिड्यूल.
So in double decidual sign what do we see? We see capsularis. Capsularis दिखता है, parietalis दिखता है. Capsularis and parietalis, two things is what we can see in a double decidual sign. Then 1 week के बाद you see a yolk sac. After that there is a embryo or a fetal pole. 6.5 weeks में fetal heart rate is present, surest sign of viability. Then 1 week के बाद again you will see a double bleb sign. अभी so there is a transition. पहले क्या देखा? पहले gestational sac देखा, फिर gestational sac के बाद there is a yolk sac. Yolk sac के बाद you see embryo के बाद you will see a double bleb sign. So in this double bleb sign you see a yolk sac and amniotic sac. So what is the feature जो हम देख सकते हैं double bleb में? There is a yolk sac, there is amniotic sac. So next is CRL. CRL is the most accurate gestational age. So usually done in the trimester 1. Trimester 1 में दिखते हैं usually हम लोग. Okay. Physiological changes in pregnancy. So physiological changes, what is increase, what is decrease, what remains same. So increased में आता है blood, plasma, RBC volume. Blood, plasma, RBC volume, retic count, WBC count, all clotting factors, fibrinogen, ESR, SHBG, TBG, total protein. Total T3 T4 will increase, free T3 T4 will decrease. Free T3 T4 will decrease. नहीं, free will be normal. Shit, sorry. Cardiac output immediately postpartum. Okay. So what do we see? क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? ब्लड इंक्रीज होगा, प्लाज्मा भी इंक्रीज होगा, आरबीसी वॉल्यूम विल इंक्रीज, रेटिक काउंट विल इंक्रीज, डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजेन, देन ईएसआर, एसएचबीजी, टीबीजी, टोटल प्रोटीन, कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज, एचआर, एसवी, आईसी, टीवी, एमवी, आरबीएफ एंड जीएफआर. व्हाट डिक्रीजेस इज हेमाटोक्राइट, HB, platelet, factor 11, 13, albumin, protein CNS, PVR, BP, diastolic blood pressure more than the systolic blood pressure fall, FRC, RV, serum urea, uric acid, creatinine, vaginal pH decreases. What remains same? Remains same में आता है BT, CT, EF, IRV, RR, vital capacity, TLC, compliance. So pyogenic granuloma gravidarum, pregnancy tumor है. Pigmentation it's due to estrogen and melasma. तो melasma हो सकता है, linea nigra हो सकता है. Then aneuploidy screening. There is a thing which we screen according to the weeks. कभी भी नहीं screen करता है. So nuchal translucency, it will be done in 11 to 13 weeks, 11 to 13 weeks plus 6 days. Okay, then there is a, इसमें हम क्या देखेंगे? फोल्ड की थिकनेस कितनी है. फोल्ड थिकनेस विल बी इवेल्युएटेड. ओके, मोस्टली ग्रेटर देन 6 mm इज एबनॉर्मल. अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देर विल बी एलिवेटेड HCG, देर इज अ डिक्रीज्ड PAPPA, elevated HCG, decreased PAPPA. Then सेकेंड ट्राइमेस्टर में देर इज अ ट्रिपल मार्कर. मतलब क्या होगा? HCG तो कंटिन्यू है, एलिवेटेड HCG, रिड्यूस्ड. ये जो हम एलिवेटेड डिक्रीज बोल रहे हैं सब कुछ डाउन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग है, राइट? जस्ट कंसिडर कि क्या क्या प्रेजेंट है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG है एंड PAPPA है, ठीक है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू हैव HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड इस्ट्रियोल.
estriol में only E3, we are considering only E3. Then T3 में there is another thing called as quadruple marker में there is increased inhibin A, डाउन सिंड्रोम में इनहिबिन ए बढ़ेगा, एंड देयर इज अ बार्ट और अ कैटरिग टेस्ट सीन. ओके, न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस ग्रेटर देन 6 mm, इट्स एबनॉर्मल. नॉर्मल कितना होगा? लेस देन 3 mm इज अ नॉर्मल एंटी कब इंक्रीज होगा? एन्यूप्लॉइडी सीवियस एनॉमलीज में इट विल बी इंक्रीज्ड. Next part is chorionic villus sampling. Chorionic villus sampling will be done in 10 to 13 weeks. उसमें ट्रोफोब्लास्ट देखेंगे. amniocentesis is also most commonly used 15 to 20 weeks में. amniocytes, fetal dermal fibroblasts. chordocentesis 18 to 20 weeks में fetal blood cells. So chorionic villus sampling done in a 10 to 13 weeks. क्या देखा हमने उसमें से हमने ट्रोफोब्लास्ट ले लिए. amniocentesis में we have amniocytes ले लिया, fetal dermal fibroblasts ले लिया. When we are doing it in the 15 to 20 weeks, and it's the most common test which you can use. Then there is a chordocentesis. It's done during 18 to 20 weeks. इसमें से हम fetal blood cells यूज़ करेंगे. एंड वेर आर वी यूजिंग दिस chordocentesis? मोस्टली इन द RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में वी डू अ कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग. उसमें हम यूज़ करेंगे chordocentesis. ओके, नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड हो रहा है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, T1 ब्लीड है तो क्या क्या हो सकता है? एक इम्प्लांटेशन ब्लीड है, दैट विल बी योर हटमन साइन. देन देयर इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तब भी ब्लीड हो सकता है. ओके, नाउ यू विल सी कि सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होता है ना, इट इज़ ऑल्सो सीन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज वेल एज इन PID. सो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस सीन इन एक्टोपिक एज वेल एज PID. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड और किस में हो सकता है? एबॉर्शन में हो सकता है. इन द मोलार प्रेगनेंसी में हो सकता है. मोलार प्रेगनेंसी में हम क्या चेक करेंगे? बीटा HCG चेक करेंगे. बीटा HCG अगर बढ़ रहा है, सो देयर कैन बी वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो रिलेटेड. नेक्स्ट, वेट सेकेंड. तो हमने क्या देख लिया? NT स्कैन 11 to 13 वीक्स, ड्यूअल मार्कर HCG PA, then triple marker HCG and AFP estriol. quadruple में inhibin, BART, कैटरिग. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइड क्या है? फेलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, जस्ट लाइक द पार्ट ऑफ एम्प्यूला. ठीक है, अभी लॉन्गेस्ट कॉर्नुअल और इंटरस्टिशियल. रिस्क फैक्टर क्या है? पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक मोर देन द ट्यूबल लाइगेशन और IUD, दैट इज द रिस्क फैक्टर. सो अगर हम स्कैनिंग वाइज देखेंगे तो देयर इज अ हेटेरोटॉपिक यूटराइन प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है. दोनों हेटेरोटॉपिक मतलब यूटराइन एक्टोपिक दोनों होगा. सो एडनेक्सल सिस्ट प्लस फायर ऑफ रिंग और अ बेगल साइन, एडनेक्सल सिस्ट, ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं तो इट कैन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी. उसका DD है द सिस्ट. तो यूट्राइन प्रेगनेंसी अगर प्रेजेंट है, रिग्रेशन हो रहा है T2 में, देन दैट्स अ सिस्ट, कॉर्पस लूटियम सिस्ट. सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, DD, रप्चर्ड एक्टोपिक एंड PID. नाउ मैनेजमेंट रप्चर्ड, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी, सैल्पिंजेक्टॉमी करोगे. अनरप्चर्ड में मेडिकल वर्सेस सर्जिकल. सैल्पिंगोस्टॉमी, सैल्पिंजेक्टॉमी में अदर ट्यूब इज डैमेज. स्टेबल मोटिवेटेड HCG इज लेस देन 5000, FCA is absent, sac is less than 3.5 centimeter, there is no contraindication to the methotrexate.
हेपाटोटॉक्सिक, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, ये सब हो गया उसका मैनेजमेंट रिलेटेड. नाउ इफ आई से इफ देयर इज अ यूपीटी टेस्ट एंड एम्प्टी यूट्रस देखा, सो द अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होगा, डबल होगा. एक्टोपिक में क्या होगा, प्लेट्यू होगा. अबॉर्शन में इट विल रिड्यूस. बीटा HCG लिया है हमने. इफ इट इज अ अर्ली प्रेगनेंसी अगेन इट विल डबल. ठीक है. एक्टोपिक है, एक्टोपिक में देयर विल बी अ प्लेट्यू. इन एक्टोपिक यू विल सी प्लेट्यू. इन अबॉर्शन इट विल रिड्यूस. सो नेक्स्ट क्या करेंगे, यू विल डू अ सीरियल बीटा HCG. सीरियल बीटा HCG फॉर 48 आवर्स. ठीक है. अभी क्राइटेरिया है TSA एंड TVS के लिए. बीटा HCG TAS कब करोगे, जब ग्रेटर देन 6000 है, एंड TVS के लिए ग्रेटर देन 2000 होना, इट्स मैंडेटरी. क्राइटेरिया सर्वाइकल के लिए पाल्मन रूबिन. अबॉर्शन के लिए स्लाइडिंग साइन होता है. ओवेरियन में स्पिगलबर्ग एब्डोमिनल स्टडी फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वाइकल में पाल्मन रूबिन, ओवेरियन इज स्पिगलबर्ग, एब्डोमिनल इज स्टडी फॉर्म. अभी डे 1 पे हम क्या करेंगे, डे 1 पे यू विल गिव मीथोट्रिक्सेट. IM में दोगे 50 mg पर मीट, ये सिंगल डोज दोगे. ओके. मीथोट्रिक्सेट IM दोगे. देन डे 4 एंड 7 पे व्हाट यू विल डू बीटा HCG. अभी बीटा HCG करोगे. रिपीट कब रिपीट करोगे, इफ देर इज अ लेस देन 15% डिक्लाइन. 15% से कम डिक्लाइन हो रहा है, देन यू विल रिपीट इट. मॉनिटर वीकली टिल 0. 0 होने के बाद भी 6 मंथ्स तक यू विल मॉनिटर इट. Now molar pregnancy. Molar pregnancy में you have a complete and partial mole. Complete mole मतलब it is generally diploid or tetraploid. Generally all the chromosomes are paternal. So complete is diploid, tetraploid, paternal. उसमें diffuse hydropic degeneration of villi दिखेगा. Whereas partial में it is generally triploid. That means extra set of chromosomes is paternal. ट्रिप्लॉइड है, एक्स्ट्रा सेट जो है वो पैटर्नल है. देयर इज अ फोकल फीटल पार्ट्स आर प्रेजेंट. P57 इज पॉजिटिव. फोकल हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ विलाई. ठीक है. सो व्हाट डिड आई से, फीटल पार्ट्स किस में प्रेजेंट है, दिस इज अ पार्शल में फीटल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. P57 is also positive, so fetal parts present, P57 positive. This is a focal hydropic degeneration of a villi. And remember, partial mole is a triploid mole. Triploid mole है मतलब it will have 69XXY. 69XXY is a triploid जो पार्शियल में प्रेजेंट होगा. नाउ नेक्स्ट इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस. स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस और अ cluster of grapes, it is seen in your molar pregnancy. Remember, fundal height is greater than the period of gestation. What will you do? You will do suction and evacuation, and you will do a beta HCG level follow up. Management में suction and evacuation, that is followed by beta HCG levels. इसको चेक करेंगे हम लोग. सो मोलार प्रेगनेंसी हो गया, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देख लिया, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स देख लिया. कंप्लीट पार्शियल होता है, कंप्लीट में डिप्लॉइड होगा या फिर टेट्राप्लॉइड होगा. पैटर्नल क्रोमोसोम्स होंगे. पार्शियल इज ट्रिप्लॉइड, 69XXY या XXX हो सकता है. ठीक है. सो फीटल पार्ट्स फील होते हैं. P57 इज पॉजिटिव, दैट्स अ पार्शियल. मैनेजमेंट में क्या किया, सक्शन इवैक्यूएशन किया, फॉलोड बाय बीटा HCG लेवल्स. नेक्स्ट GTN देखेंगे, दैट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया. इसमें अभी हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, विल फॉलो द क्राइटेरिया in which there is a persistent bleed, uterine sub-involution, shock,
persistent TL cyst, metastasis, beta HCG, plateau 1, 7, 14, 21. Beta HCG rises 1, 7, 14 पे and detectable greater than 6 months पे. Okay, most common is invasive mole, फिर आता है CCA, PSTT, ETT. What is CCA? That's choriocarcinoma. So most common क्या है? Invasive mole. So invasive mole बहुत ज़्यादा कॉमन पार्ट है. फिर उसके बाद आता है कोरियोकार्सिनोमा. कोरियो के बाद आएगा तुम्हारा प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक. फिर उसके बाद आता है एपिथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर. ओके, दैट इज़ इट. फिर WHO स्कोरिंग, प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग करेंगे. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन age in years, antecedent pregnancy, interval since the last pregnancy, beta HCG, large size tumor, metastasis, site of metastasis, previous failed chemo. So 0 किसको देंगे? 0 में आता है age less than 40, H मोली होगा एंटीसीडेंट में, लेस देन 4 months इंटरवल बिटवीन द लास्ट प्रेगनेंसी एंड द करंट वन. बीटा HCG लेस देन 1000 है. 3 to 4 साइज है उसकी. 1 में क्या होगा? 40 से ज़्यादा हो गया. एबॉर्शन है 4 to 6 months हो गया है. 10⁻³ to 10⁻⁴ इज द बीटा HCG. large size tumors will be 5 में. नंबर ऑफ मेटास्टेसिस इज 1 to 4. साइट ऑफ मेटास्टेसिस स्प्लीन किडनी है तो 1. इफ इट इज GI इट इज 2. लीवर ब्रेन है तो 4 नंबर. 1 इज स्प्लीन एंड किडनी, 2 इज GI, 4 is liver and brain. So now 2 will see antecedent pregnancy में term. Interval since last pregnancy it is 7 to 12 and 10⁻⁴ होगा to 10⁻⁵. 10⁻⁴ to 10⁻⁵. Next comes 4 number. So ये 1 year टोटल 12 मंथ से ज़्यादा हो गया लास्ट प्रेगनेंसी, दैट्स ग्रेड 4 हो गया स्कोरिंग में. फिर 10⁻⁵ से ज़्यादा होगा द बीटा HCG एंड नंबर ऑफ मेटास्टेसिस इज 8. ओके, स्टेजिंग इज इम्पोर्टेंट. Stage 1 it is confined to uterus. Stage 2 GTN will extend outside uterus. Okay, it is going outside uterus, but it is limited to genital structures. 3 is going to lungs or without known genital tract, and 4 is all other metastatic sites. अभी इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? इमाको रेजिमेन फॉलो करते हैं. इमाको रेजिमेन में E इज इटोपोसाइड, M इज मिथोट्रिक्सेट, एक्टिनोमाइसिन, ऑन्कोविन, दैट इज विनक्रिस्टिन. पानी पी लेते हैं. ओके, सो स्टेज 1 द डिसीज इज कन्फाइंड टू द यूट्रस. 2 में क्या बोला? आउटसाइड यूट्रस गया, बट इट इज़ लिमिटेड टू द जेनाइटल स्ट्रक्चर्स. 3 में इट इज़ एक्सटेंडेड टू लंग्स. ओके, 4 में अदर मेटास्टेटिक साइट्स. कैनन बॉल मेटास्टेसिस दिखेगा, ब्लूइश सब यूरिथ्रल नोड्यूल, वजाइनल और सुपरफिशियल मेटास्टेसिस दिखेगा. नाउ नेक्स्ट इज एबॉर्शंस. ओके, सो लेस देन 20 वीक्स, लेस देन 500 ग्राम. 2 चीज़ें होती है एबॉर्शन के लिए. एक तो इट शुड बी लेस देन 20 वीक्स और इट शुड बी लेस देन 500 ग्राम. नाउ विल कंसिडर देर आर almost 5 types of abortion. One is incomplete, other is complete abortion. एक होता है inevitable, एक है threatened and missed abortions. So
incomplete abortion. In incomplete abortion, consider os is open. Os is open, bleeding is present. Os is open, bleeding is present, pain is also present, uterus is smaller. Uterus is smaller. On USG you see a retained products of conception. So incomplete abortion में os is open, bleeding is present, pain is present, uterus is small. USG में there is a retained products of conception. If I again say that os is open, okay, bleeding भी है, pain भी है, okay, pain is also there, uterus is equal, it's not smaller, it's equal, okay. USG में I can see fetus, there's no fetal cardiac activity, no fetal cardiac activity है, uterus equal size, so it is a inevitable abortion. That means you can't take it back, कुछ भी कर लो. So os is open, bleeding is present, pain is present, uterus is equal. USG पे fetus भी दिख रहा है, but there is no fetal cardiac activity, it's an inevitable abortion. Okay, if I say अभी os is closed, okay, wait a second, os is closed, bleeding has stopped, os is closed, bleeding is stopped, uterus is small, uterus is smaller, and USG में you see the empty ET, so it's a complete abortion. अगर os close हो गया मतलब वो जो प्रोसेस है it's already done, you can't go back. So os is closed, bleeding is stopped, uterus is smaller, USG में empty ET दिख रहा है, it's a complete abortion. Again, if os is closed, there is pain, there is spotting, uterus is equal, fetus भी दिख रहा है, fetal cardiac activity भी है. What I said, os is closed, spotting है, pain भी है, uterus is equal. USG में if you see there is a fetus along with the fetal cardiac activity, that means this is a threatened abortion. This is a threatened abortion. What you will advise for a threatened abortion, एक तो strict bed rest करने के लिए बोलोगे, और दूसरा चीज़ है you will give a progesterone. So os is closed, spotting, pain present, uterus equal, fetus है, fetal cardiac activity भी है, it's a threatened abortion, you will go for a progesterone. Again if I say os present, closed है, spotting, pain present हो भी सकती है, नहीं भी है, uterus now it is smaller, uterus is smaller, and USG पे no fetal cardiac activity, fetal cardiac activity ही absent है, so this will be missed abortion. Missed abortion में fetal cardiac activity absent होगी, uterus small होगा, os closed होगा. Now preterm labor में contractions, usual contractions कितने होते हैं, at least 3 in 10 minutes. So अगर greater than equal to 4 every 20 minutes plus greater than 2 centimeter dilatation, okay, so management क्या है preterm labor का या PPROM का, again it's all around the concepts. 34 weeks से कम है बच्चा, क्या दोगे, you will give steroids दोगे, you will give group B streptococcus prophylaxis, and you will give tocolytics. Tocolytics में क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, there is nifedipine, there is indomethacin, nifedipine, indomethacin, that's less than 32 weeks होगा, then you will give indomethacin. Why after 32 weeks we are not giving indomethacin? Because it can cause a premature closure of patent ductus arteriosus. You have atosiban. Atosiban कब देंगे, जब there is a heart disease. So atosiban is safe in heart disease. Okay, so less than 34 weeks है, तो what I will give steroids, GBS prophylaxis, tocolytics देंगे.
अगर लेस देन 32 वीक्स है, लेस देन 32 वीक्स, 32 वीक्स से कम है तो यू विल गिव MgSO4. MgSO4 एक चीज़ हम ऐड कर देंगे. अब इफ आई से 34 वीक्स से ज़्यादा है, सो ओनली आई विल गिव GBS prophylaxis with or without steroids. No need of tocolytics. Now what you will do, PPROM में you will induce in PPROM chorioamnitis, abruption, fetal distress. amniotic fluid में क्या दिखेगा, फर्निंग दिखेगा. Nitrogen test, blue test will be alkaline, Nile blue sulfatase और fibronectin. So preterm labor क्या क्या टेस्ट देखेंगे amniotic fluid में, फर्निंग देखेंगे, nitrogen blue test, that's alkaline, Nile blue sulfatase, फाइब्रोनेक्टिन. ये सारी चीज़ें हम प्रीटर्म लेबर में करेंगे. 1 पॉइंट लेफ्ट हो गया, रह गया GBS प्रोफाइल मतलब ग्रुप बी बीटा, ग्रुप बी टोकोकस. इसके प्रोफाइल एक्सिस में हम देंगे पेनिसिलिन एंड वो नहीं तो एम्पिसिलिन, कुछ तो दो. दिस इज व्हाट यू कैन गिव. Now, missed abortion पे you have a specific sign that is called as bilated ovum seen in a missed abortion. So, जो gestational sac है that is greater than 25 mm with no fetal pole, crown rum length जो होता है that is greater than 7 mm with no fetal heart rate. So that's a missed abortion. So we know कि क्या क्या होना चाहिए. gestational sac का diameter 25 mm होना चाहिए, तब fetal cardiac activity सुनाई देगी. crown rum length जो है वो 7 mm के साथ ज़्यादा होगा. ये सब fulfill होगा and फिर fetal cardiac activity सुनाई देगी. अगर ये नहीं है then you won't be able to hear the fetal heart rate. अगर ये सारी चीज़ें इसमें से इफ़ आई से द जेस्टेशनल सैक या फिर मीन सैक डायमीटर लेस देन 25 mm है या फिर क्राउन रम लेंथ इज़ नॉट 7 mm, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि वेट फॉर 1 वीक, कम बैक अगेन. MTP. So MTP में MTP 2021 एक्ट के अकॉर्डिंग लेस देन 20 वीक्स है तो you can do all 4 ways, that is therapeutic, eugenic, humanitarian and social. So therapeutic abortion कब होता है, जब there is a danger to the life of mother, so that's therapeutic. eugenic मतलब fetal anomaly है, eugenic is a fetal anomaly. humanitarian basis मतलब रेप हो गया, incest है, minor है, mentally ill है, marital status change हो गया तो that's a humanitarian grounds. ओके. सोशल में इट्स अ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर. सो ये सारी चारों चीज़ें इफ़ इट इज़ लेस देन 20 वीक्स, ऑल थेरेपेटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल, सारे चीज़ें के लिए इट इज़ वैलिड एंड जस्ट 1 डॉक्टर इज़ नेसेसरी. इफ़ इट इज़ 20 to 24 वीक्स में देन TEH सोशल वाला नहीं फॉलो हो सकता है इसमें. एंड इन दिस सिचुएशन you will opt for 2 doctor opinion. greater than equal to 24 वीक्स है तो जस्ट थेराप्यूटिक. अगर मदर को एंडेंजर हो रहा है या फिर फीटल अनॉमली होगा देन ओनली यू विल डू greater than 24 वीक्स की अबॉर्शन. इसमें यू विल नीड होल ऑफ द मेडिकल बोर्ड टू अप्रूव कि हाँ पापा ये अबॉर्शन यू कैन डू. इन द मेडिकल बोर्ड हु ऑल आर देयर इज अ OBGYN, देयर इज अ पीडियाट्रिशियन, देयर इज अ रेडियोलॉजिस्ट. There's no one called as lawyer in this medical board. So age for consent is greater than 18 year. husband की consent लगती है क्या, नहीं लगती, there is no necessity. So OBG का क्या criteria होगा, it should be RMP with 6 months internship or 1 year house job
or 25 cases of MTP to be done. Manual vacuum aspirator, 2 pinch valve होता है MTP का. Now in this also T1 में you can do manual vacuum aspirator. इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. 60 ml हो सकता है, 660 mmHg इट्स अ प्रेशर यूज. 6 to 12 weeks पीरियड ऑफ जेस्टेशन तक यू कैन डू इट. इफ ओनली 1 pinch wall इज देयर, इट्स अ मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज. ओनली 1 pinch wall है तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज. मेडिकल में लेस देन 9 weeks मिफेप्रिस्टोन RU48/6 followed by 200 mg. Wait, we'll write it. लेस देन 9 weeks है. मिफेप्रिस्टोन में यू हैव RU486. ओके, ये तुम लोग दोगे. दैट इज फॉलोड बाय 200 mg. फिर 48 hours के बाद 800 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रोस्टॉल. ठीक है. सक्शन एवैक्यूएशन कब कर सकते हो? यू कैन डू इट इन द 12 week. सक्शन एवैक्यूएशन कैन बी डन इन द 12 week. सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो मीज़ोप्रोस्टॉल दे सकते हो. PGE1 होता है, दैट्स 400 माइक्रोग्राम 3 hourly, मैक्सिमम 4 to 5 doses. DNE, दैट्स द ओवम फोर्सेप्स इंट्रा एमनियोटिक हाइपर ऑस्मोटिक सलाइन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथेक्रिडन. सो इंट्रा एमनियोटिक हाइपर ऑस्मोटिक सलाइन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथेक्रिडन. रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 consecutive pregnancy loss. So you will start doing the workup when there is greater than equal to 2. Most common cause in the first trimester, it is chromosomal. Most common cause in the second trimester, it is a structural anomalies. Structural anomalies is the second trimester का cause. Sydney or Sapero, APLA, single most common cause. So in this vascular thrombosis, pregnancy, morbidity, premature birth at less than equal to 34 weeks due to preeclampsia, greater than equal to 3 consecutive abortion at less than 10 weeks, placental insufficiency at less than 34 weeks. Clinical criteria: vascular thrombosis, pregnancy, morbidity, premature birth at less than equal to 34 weeks due to preeclampsia, greater than equal to 3 consecutive abortions at less than 10 weeks, placental insufficiency at less than 34 weeks. lab diagnosis, lab criteria में 3 ये होता है: एंटीकार्डियोलिपिन IgG, lupus anticoagulant and anti-beta-2 glycoprotein. 2 into 12 weeks apart. Okay, so in vitro क्या होगा? APTT increase होगा. ये रसेल वाइपर विनोम टेस्ट में भी सेम होगा. Okay, so test in a recurrent pregnancy loss, you will check for TVS, you will do TSH. हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या वो चेक करोगे, कैरियोटाइपिंग देखोगे, एप्ला करोगे. ओके, सो इट्स what is the thing which you won't do? It's the torch infections do not cause the recurrent pregnancy loss, so उनके testing हम नहीं करेंगे. So one lab criteria, it is a definitive APS. Treatment: low molecular weight heparin plus aspirin. एंटीकोगुलेशन इन प्रेगनेंसी, अगर 12 वीक्स से कम है तो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दोगे. इफ इट इज़ 12 to 36 वीक्स यू विल प्रेफर वॉरफेरिन. ग्रेटर देन 36 वीक्स है तो हेपारिन को स्विच करके यू विल यूज़ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन. वेरी सिंपल. लेस देन 12 वीक्स है तो हम क्या देंगे? लो मोलिकुलर वेट हेपारिन देंगे. अगर 12 वीक्स टू 36 वीक्स तक है तो आई विल प्रेफर गिविंग वॉरफेरिन. अभी ग्रेटर देन 36 वीक्स में यू विल डू अ हेपारिन स्विच. हेपारिन स्विच करेंगे मतलब देयर विल बी अ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग.
क्यों हिल रहा है इतना, ठीक है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में पेनलेस T2 सर्वाइकल डायलिटेशन, उसकी मैनेजमेंट करोगे। क्लिनिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या होगा, greater than equal to 2 painless labor in second trimester, 1 painless PL plus USG, cervix length देखोगे less than equal to 24 mm, cerclage in a non pregnant, lash and lash देखोगे, Benson Durfee laparoscopic. What is the absolute contraindication to the cerclage? It is a rupture of membrane. सो सर्कलाज के लिए 12 to 14 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन में व्हाट विल डू शिरोडकर मैकडोनल्ड सर्कलाज, शिरोडकर करोगे, मैकडोनल्ड सर्कलाज करोगे, उसमें पर स्ट्रिंग सूचर्स डालेंगे हम लोग। सर्वाइकल लेंथ इफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू 24 mm एंड इफ देर इज अ फनलिंग, सो यू शुड रिमेंबर इट एज अ सर्कलाज। बीटा टूज ऑफ मेडिसिन, माइक्रोग्लोब्यूलिन मल्टीपल माइलोमा में होगा। अमाइलॉइडोसिस में यू विल सी डायलिसिस रिलेटेड, बीटा ट्रांसफेरिन CSF, ग्लाइकोप्रोटीन एप्ला। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस है, सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस है, 32 वीक्स में देर इज अ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, उसके कारण देर विल बी अनदर लॉस। सो is it due to APLA or is it due to congenital syphilis? So how will rule out? There is a law which states that congenital syphilis में क्या होगा कि जितने प्रेगनेंसीज आगे बढ़ेंगे उतने there will be an improvement further siblings में, so it's a APLA for sure. If there is a recurrent pregnancy, it's APLA, recurrent pregnancy loss, it's APLA syndrome. PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, देयर इज अ फेलियर ऑफ इन्वेजन ऑफ स्पाइरल आर्टरी बाय एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोप्लास्ट। सो इन्वेजन कौन सी आर्टरी का है, स्पाइरल आर्टरी का है, ड्यू टू विच साइटोट्रोफोप्लास्ट, इट इज एक्स्ट्राविलस, एक्स्ट्रा वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। सो इसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 में PgI2 विल इंक्रीज। सो क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्या क्राइटेरिया है, क्रोनिक का, जेस्टेशनल का एंड प्रीक्लैम्पशिया। सो इन क्रोनिक हाइपरटेंशन BP विल बी ग्रेटर देन 140/90 mmHg, लेस देन 20 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन में। नाउ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में BP ग्रेटर देन 140/90 mmHg, ग्रेटर देन 20 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन लेस देन 20 वीक्स में BP व्हेन इट इज ग्रेटर देन 140/90 mmHg। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में BP ग्रेटर देन 140/90 ग्रेटर देन 20 वीक्स, ग्रेटर देन 20 वीक्स में हो रहा है, देन दैट्स जेस्टेशनल। प्री इक्लैम्पशिया में there is a hypertension along with proteinuria greater than equal to 300 mg per 24 hours, or urine protein. So इसमें you will see creatinine ratio, it's greater than equal to 0.3, dipstick positive है, dipstick is 1 positive, it's persistent. So this is your preeclampsia. When you see hypertension along with proteinuria, that also greater than equal to 300 mg per 24 hours, या फिर यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3, so it's preeclampsia. Severe preeclampsia or a help, it's impending eclampsia, blurring of vision दिखेगा, headache, dyspnea, right upper quadrant pain. Another criteria that is important, that is Tennessee criteria, it's for the HELP syndrome. Tennessee, okay, so HELP लिख लेंगे, okay, इसमें क्या है, H is for hemolytic anemia, H is hemolytic anemia, EL मतलब क्या, elevated liver enzymes, then LP, this is low platelet,
ठीक है, दिस इज अ टेनेसी क्राइटेरिया. सो क्या देखा, H इज हीमोलाइटिक एनीमिया, EL इज योर एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स हो गया या फिर कुछ, एंड LP इज लो प्लेटलेट्स. So hemolytic anemia में what you will remember that there is a cystocytes, LDH is greater than 600, bilirubin greater than 1.2. Eclampsia में there is convulsions. Antihypertensives in pregnancy, drug of choice is labetalol. Maximum dose is 2400 mg oral. There's a methyl dopa, nifedipine, nitroprusside, nitroglycerin, hydralazine, ARB, ACE, beta blockers, diuretics. एंटीहाइपरटेंसिव कौन कौन है, लेबेटालॉल जिसका मैक्सिमम डोज है 2400 mg ओरल, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, नाइट्रोप्रुसाइड, nitroglycerin, hydralazine. What is contraindicated? ARBs, ACE, beta blocker, diuretics, they are contraindicated. So, eclampsia का drug of choice is MGSO4. mechanism of action neuroprotective है, NMDA blocker, regimen Pritchard regimen. So in this loading dose does not depend on the renal function. So 14 ग्राम, इसमें भी दो वेज में देंगे, 10 ग्राम IM होगा, 4 ग्राम IV होगा. 10 ग्राम IM इट इज इन द 50% कॉन्सेंट्रेशन, ओके, गिवन इन ईच बटॉक्स. 4 ग्राम IV डोज इज 8 ml, मतलब क्या होता है, एक इसमें 4x2 कंसिडर कर रहे हैं. ईच 1 ग्राम MgSO4 वायल हैज 2 ml. 1 ग्राम के इसके लिए 2 ml का वायल होता है. थेरापेटिक लेवल 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. मॉनिटरिंग में DTR इज स्लगिश, RR यूरिन आउटपुट. सो दिस इज अ मॉनिटरिंग. एंटीडोट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. Liver diseases in pregnancy, again we'll talk about health, already done. Then there is acute fatty liver, okay, in this increased maternal mortality, there is deficiency of LCHAD in fetus, elevated OTPT, hypoglycemia, hyperammonemia, immediate termination of pregnancy. ICP में this increased bile acid pruritus is present, UCDA होता है. Definitive management is a termination at 37 weeks period of gestation. Viral hepatitis, most common pregnancy में it is hepatitis E, that's common. GDM is important. So हम GDM की टेस्टिंग कब करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो इनिशियल जब भी पेशेंट आए तो इनिशियल एक बार हम OGTT करेंगे. Then at 24 to 28 weeks you will do OGTT. अभी guidelines are important. There is a system called as IADPGS, that's from AIMS. Okay, इसमें fasting greater than equal to 92 सब millimole per liter. Okay, so that's greater than equal to 92 है. ग्लूकोज चैलेंज करेंगे, मतलब 75 ग्राम OGTT दिया, उसके बाद 1 hour यू विल चेक, 1 hour में ग्रेटर देन इक्वल टू 180, 2 hour चेक करोगे, 2 hour में ग्रेटर देन इक्वल टू 153. सो दिस इज IADPSG, फास्टिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 92, 75 ग्राम OGTT दिया, फिर 1 hour में देखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया, 2 hour में देखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 153 हो गया. There is another guidelines, that is DIPSI guidelines, that's Indian guideline. तो इसमें you will directly see कि 2 hour हम कंसिडर करेंगे, 2 hour में ग्रेटर देन इक्वल टू 140 है, then something to be valued about. Congenital anomalies में over diabetes है, most common CVS में it is VSD. most specific पूछा, most specific is TGA. most specific overall
Gestational diabetes बोला तो caudal regression syndrome और a sacral agenesis, it's very important. Sacral agenesis, caudal regression syndrome, more specific. Macrosomia मतलब head is larger. Overt GDM में greater than equal to 4 kg का बच्चा है, अभी क्या होगा, insulin levels will be increased. So what you will prefer, obviously if it is a macrosomia you will prefer LSCS. पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा. न्यूनेटल में पेंडरसन. पेंडरसन में क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, न्यूनेट में क्या क्या फाइंडिंग्स आपको दिखेंगी. देयर विल बी अ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, hypocalcemia, hypomagnesemia. Okay, there is RDS, there is a polycythemia, and there is jaundice. So what all things you see in a neonate of a GDM mother? Hypoglycemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, RDS, polycythemia, jaundice. Okay, when will you do the delivery? Agar it is well controlled, well controlled, it can be based on your diet or it can be based on how much you are giving insulin or drugs. पर अगर well controlled है तो you will deliver at 39 weeks. Okay, if it's not controlled, it's uncontrolled, then you will deliver at 37 weeks. 37 weeks पे delivery. Cyrinomania like mermaid. Folate 5 mg prior 3 months दोगे. Okay, okay. RH isoimmunization. Fetal antenatal visit. Fetal antenatal visit देखेंगे तो determine RH status of a woman. If RH negative, you will determine the RH status of the husband. RH negative women with RH positive husband. RH negative women with RH positive. तो क्या करोगे, पहले ICT टाइटर परफॉर्म करोगे. ICT टाइटर if it's negative you will repeat every 4 week. Okay, you will give anti-D 300 microgram IM prophylaxis at 28 to 32 पे. Okay, that's a antepartum prophylaxis. फिर repeat anti-D within 72 hours of birth if baby is RH positive. RH positive है तो हम देंगे anti-D. So what is important is कि 30 ml fetal blood it is neutralized by this anti-D. अभी if ICT titer it is less than 1:16, you will repeat titer every 2 weeks. Deliver at normal time. No anti-D prophylaxis needed. No anti-D prophylaxis needed. Now if ICT titer there is 1:16 dilution or more, monitor every 2 weeks. Fetal USG करोगे. From that you will do a MCA PSV. Okay, so उसमें से क्या पता चलेगा, if it is 1.5 you will repeat after 1 week. You will perform cordocentesis, perform IUT if fetal HB अगर 10 ग्राम per DL से कम है. Okay, then you will repeat after 2 weeks every 3 week thereafter. So हमने देखा ICT किया, ICT मेरा आया नेगेटिव. इफ ICT इज नेगेटिव यू विल रिपीट द टाइटर एवरी 4 वीक पे रिपीट किया. देन गिव 28 to 32 में यू विल गिव एंटी-डी. एंटी-डी दे दिया. if it is RH positive fetus, give anti-D 72 hours after birth. Threatened and complete abortions in the first trimester, anti-D no. Avoid methyl ergometrin 300 microgram 30 ml fetal blood. Half life is 21 days. Hydrops में क्या देखेंगे, hydrops is all fluid. Pleural effusion, fetal hydrops greater than equal to 2. Pleural effusion, ascites. Pericardial effusion, anasarca. So 4 थिंग है fetal hydrops में. In this greater than equal to 2 होना चाहिए. Pleural effusion, ascites, pericardial effusion, anasarca.
Okay, you have to go till 88. I am on 67. ठीक है. Anemia, thyroid, lico disorders in pregnancy. So anemia less than 11 gram per dl, most common physiological, then IDA, HCT less than 33%. Government of India IFA pills देगा 60 mg ferrous plus 500 माइक्रोग्राम फोलेट OD, डिवॉर्मिंग 400 mg albendazole का करोगे. मैनेजमेंट क्या है एनीमिया का? If greater than 7 gram per dl, less than 34 weeks IFF BD, greater than 34 weeks है, greater than 34 weeks non-compliant parental. So greater than 7 gram HB greater than 7 gram है, 34 weeks से कम है, so iron folic acid दोगे, that also BD दोगे. Okay, if I say greater than 34 weeks है, नॉन कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है तो ओरल दे ही नहीं पाएंगे. सो व्हाट यू विल गो फॉर अ पेरेंट्रल. नाउ इफ आई से 7 ग्राम पर डीएल से कम है, 34 वीक से कम है, तो स्टिल आई विल प्रेफर पेरेंट्रल क्योंकि 7 ग्राम से कम है. ग्रेटर देन 34 वीक्स पे और लेस देन 5 ग्राम पर डीएल यू विल गो फॉर अ बीटी. बीटी इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. पेरेंट्रल आयन में क्या आएगा? फेरिस, सुक्रोज एंड carboxymaltose. Thyroid disorders T3 T4 total will increase. Free is normal. TBG increases. TBG increase होगा, total T3 T4 increase होगा. So on treatment for hypothyroidism, dose will increase. Indications of aspirin, ये important है. APLA, past history, PIH, chronic hypertension, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, ओवर डायबिटीज के बाद CKD. These are the indications for aspirin. APLA, past history of PIH, chronic hypertension, multifetal pregnancy, over diabetes, CKD. What was the mnemonic? Amniotic fluid का concentration you will see that uteroplacental insufficiency में it will decrease, means it's oligo. Renal agenesis में भी it's oligo. PUV decreases. Okay, what causes polyhydramnios? It's the Bartter syndrome, esophageal atresia. If the person is not able to gulp it out, obviously polyhydramnios होगा. Cleft lip, cleft palate increase होगा. Neural tube defect में भी increase होगा. Omphalocele, fetal anemia, GDM, twins, trisomy, anencephaly, हर चीज़ में क्या होगा? polyhydramnios. So polyhydramnios में याद रखो PPROM, कॉर्ड प्रोलैप्स, एब्रप्शियो, ये भी होता है. ओलिगोहाइड्रोमिनोज इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर, मतलब 2025 में ही दे हैड आस्क्ड इन NeetPg एग्जाम. एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम फोटो दिया था, सो यू शुड रिमेंबर कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज कॉजेज अ एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम. IUGR में क्या होगा? कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है. DDH, मेटाटार्सिस एडक्टस, टाइट इंट्रायूटराइन, ठीक है, यूटराइन. व्हाट इज अ क्राइटेरिया? हम कैसे बोलेंगे ये ओलिगो है या पॉली है? यू विल चेक फॉर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट. सिंगल डीपेस्ट पॉकेट को चेक करेंगे. यूजुअल नॉर्मल इज योर 2 to 8 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो गया तो इट इज ओलिगो. इफ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया देन इट इज अ पॉली, बिकॉज नॉर्मल इज 2 to 8. 2 से कम ओलिगो, 8 से ज़्यादा पॉली. This is for single deepest pocket. Another criteria is amniotic fluid index. Amniotic fluid index में less than 5 is oligo, greater than 25 is poly. Less than 5 oligo, greater than 25 poly. Protective PIH में there is calcium supplementation. Smoking aspirin. Heart disorders in pregnancy.
इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल। नॉट फिजियोलॉजिकल में आता है पैनसिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर, ऑलरेडी होता है। तो सेकेंड टू फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देर इज अ हाई पिच पैनसिस्टोलिक मेमोरी शफल। मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज इज अ mitral stenosis. Most common time for heart failure, this is important, the sequence: immediate postpartum, second stage, 34 weeks period of gestation. This is a sequence. सबसे ज़्यादा risk is during the immediate postpartum, then second stage आता है, फिर 34 weeks आता है. Delivery mode normal vaginal delivery plus instrumental हो सकता है. So कौन से इसमें we do not recommend pregnancy? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, when there is a ejection fraction less than 30%, there is a right ventricular dysfunction, severe mitral stenosis, aortic stenosis, severe aortic dilatation, Ehlers-Danlos, Fontan, peripartum, Eisenmenger syndrome, इन सब में you won't recommend pregnancy. Third trimester or within less than 6 months postpartum is your peripartum. Systolic dysfunction, idiopathic. अभी ट्विंस में रिमेंबर द ट्विन पिक और लैम्डा साइन, DCDA. पहले तो विल क्लासिफाई DCDA मतलब डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक. डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक कब होगा? 0 to 4 days में. इन 0 to 4 days में अगर डिवाइड होता है देन इट इज DCDA. If during 4 to 8 days division occurs, then it is a MCDA. MCDA मतलब monochorionic diamniotic. Okay. MAMC मतलब mono amniotic monochorionic. ये कब दिखेगा? Obviously 8 days के बाद, 8 to 12 days के बाद अगर डिवाइड हो रहा है then it is MAMC. So this is how we'll classify twins. मतलब डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक 4 days के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो 4 to 8 में होगा तो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक. लाइकवाइज सो DCDA में क्या दिखता है? ट्विन पिक दिखता है. यू विल सी अ ट्विन पिक और अ लैम्डा साइन. ट्विन पिक और अ लैम्डा साइन. टी साइन कब दिखेगा? टी साइन इसमें दिखेगा, कॉर्ड एंटेंगलमेंट इन MS. एंटेंगलमेंट. You have a quintero staging. TTTS. Stage 1 oligohydramnios polyhydramnios. Stage 2 में यूरिनरी ब्लैडर ही गायब हो जाता है. क्विंटेरो staging for twin to twin transfusion syndrome. So stage 1 में क्या है? ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोमिनस. एक ओलिगो होता है, एक पॉली होता है. स्टेज 2 में क्या होता है? देयर इज अ एब्सेंट यूरिनरी ब्लैडर. जो डोनर होता है, जो डोनेट कर रहा होता है, उसकी ही यूरिनरी ब्लैडर गायब हो जाएगी. स्टेज 3 में विल सी दैट देयर इज अ डॉपलर एबनॉर्मलिटी. 4 में देयर इज अ फीटल हाइड्रोप्स. सो 4 stages of quintero staging. 1 में oligopoly, 2 is absent urinary bladder, 3 Doppler abnormality, 4 is fetal hydrops. How will you treat? You will do laser ablation. जो abnormal anastomosis between दो ट्विन है ना, मतलब एक ट्विन को A बोलते हैं, दूसरे को B बोलते हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बन जाता है. दैट्स द abnormal anastomosis. तो इसको हम कट कर देंगे थ्रू अ लेजर एब्लेशन. Through the laser ablation, you will just remove the abnormal anastomosis. Greater than 13 days पे अगर डिविजन हो रहा है, then what we'll say it as, we'll call it as a conjoined twin. उसमें most common is parapagus and then comes the thoracopagus. Most important prognostic is monochorionicity. LSCS first twin not in vertex, तब we'll do LSCS. अगर फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स में तो यू कैन डू अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी. बट अगर फर्स्ट ट्विन ही ट्रांसवर्स लाई में है या समथिंग एल्स, यू वोंट बी एबल टू डू LSCS. ब्रीच है, सो यू हैव टू डू LSCS. एंड नॉर्मल नहीं कर पाओगे, LSCS करना पड़ेगा.
T3 bleeding. Greater than equal to 20 weeks antepartum is the T3 bleeding. So painless, bright red bleed with soft uterus, fetal heart sound, it's normal. Fundal height is equal to period of gestation. Malpresentations are common. Apt test is negative. So placenta previa में bright red color bleeding होगी. Painless होगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम हुआ है कुछ. ओके, सॉफ्ट यूट्रस है. फीटल हार्ट रेट भी, हार्ट साउंड्स भी नॉर्मल है. हाइट इज ऑल्सो इक्वल. ओके, एप टेस्ट इज नेगेटिव, दैट इज अ प्लेसेंटा प्रीविया. नाउ पीवी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल डू टीवीएस. टीवीएस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. नाउ वैसा प्रीविया में पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड विथ सॉफ्ट यूट्रस, फीटल डिस्ट्रेस होगा. फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. सीटीजी में साइन्यूसॉइडल दिखेगा, एप्टेस पॉजिटिव. सो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट दोनों में? एप्टेस पॉजिटिव किस में? वैसा प्रीविया में है. सीटीजी में क्या दिख रहा है? साइन्यूसॉइडल पैटर्न दिख रहा है. इसमें फीटल डिस्ट्रेस होगा, उसमें फीटल डिस्ट्रेस नहीं था. सो इसमें यू विल गो फॉर एमरजेंसी एलएससीएस फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया. इफ लेस देन 37 वीक्स है, मदर फीटस स्टेबल है, तो मैककेफे जॉनसन रेजिमेन करोगे. मदर फीटस इज नॉर्मल स्टेबल, मैककेफे जॉनसन रेजिमेन. 37 वीक्स से ज़्यादा है, देन यू विल गो फॉर एलएससीएस. नाउ एब्रप्शो प्लेसेंटा. एब्रप्शो प्लेसेंटा मतलब ट्रॉमा की रिस्क फैक्टर है या पीआईएच है. पेनफुल होगा. पेनफुल, डार्क रेड ब्लीड विथ टेंस टेंडर यूट्रस. पेनफुल है, डार्क रेड ब्लीड है, टेंस टेंडर यूट्रस है, फीटल डिस्ट्रेस भी है. फीटल फंडल हाइट इज ग्रेटर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन. डीआईसी, दैट्स अ थ्रोम्बोप्लास्टिन. एब्रप्शो प्लेसेंटा. एब्रप्शो प्लेसेंटा को कंसिडर करोगे. 34 वीक्स से कम होगा तो स्टेरॉइड्स फॉलोड बाय इंडक्शन ऑफ लेबर. केबी टेस्ट करते हैं हम. केबी टेस्ट में it's a quantitative, whereas apt test was a qualitative alkali denaturation. apt test is qualitative alkali denaturation. उसमें क्या था? blood stained stool and water होता है. blood stained stool and water. add 1 ml of 1% sodium hydroxide. so 1% sodium hydroxide डालोगे. maternal blood में it will look like darkish shade. सेम ब्लड स्टेन स्टूल एंड वाटर, 1 ml ऑफ 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड. फीटल ब्लड में डालोगे, कुछ चेंज नहीं दिख रहा है. प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, मॉर्बिडली अधरेंट प्लेसेंटा होता है. यूएसजी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस एमआरआई. व्हाट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी? इट्स अ यूटेराइन एपोप्लेक्सी. सो स्टेजेस और प्लेसेंटा प्रीविया का देखा था. पहला इज लो लाइंग प्लेसेंटा, सेकेंड इज मार्जिनल प्लेसेंटा, थर्ड इज पार्शियल प्रीविया दैट्स पार्शियली कवरिंग द ऑस, फोर्थ इज अ कंप्लीट प्रीविया दैट इज कंप्लीटली कवरिंग द ऑस. टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. बाइलोब्ड, 2 लोब्स दिख रहे हैं परफेक्टली. देन देयर इज अ सर्कममार्जिनेट विलामेंटस fetal vessel os. So vasa previa, this is a marginal. Marginal का दूसरा नाम is battledore. You have a succensurate. Succensurate में एक प्रॉब्लम होता है कि there is usually more chances of secondary PPH because of retent placenta greater than 24 hours में. Then you have circumvallate, circummarginate, filamentous, succensurate, marginal, battledore. Stages of labor. So first stage में क्या होगा? First stage is divided into 2 phase, latent phase, active phase. Stage 1 is full cervical dilatation. So Friedman के according it is 3 centimeter, modified WHO के according 4 centimeter है, and WHO definition के according it's a 5 centimeter. We'll usually consider 5 centimeter. And
ACOG के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर. सो 4 लोगों ने 4 अलग अलग कितने सेंटीमीटर्स डायलिटेशन है वो बोला है. स्टेज 2 इज एक्सपल्शन ऑफ बेबी. बेबी को एक्सपल्ड कर दिया स्टेज 2 में. स्टेज 3 में बेबी इज डिलीवर्ड. व्हाट यू विल expel, you will do expulsion of placenta. Stage 4 is a golden 1 hour period जहाँ पे you will take a observation monitoring the cardinal movements. engagement होगा, descent होगा, flexion, internal rotation, crowning, extension, restitution, external rotation, expulsion of the rest of the body. engagement, descent, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, रोटेट होने के बाद उसको क्राउन मिल गया, क्राउनिंग हो गया, क्राउनिंग होने के बाद उसने अपना किंगडम बढ़ा दिया, सो एक्सटेंशन हो गया, फिर उसको रेस्टिट्यूट कर दिया तो रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल लोगों ने उसके अगेंस्ट प्लानिंग की तो एक्सटर्नल रोटेशन, एंड फिर पूरे इसमें से एक्सपल्ड कर दिया. सो दिस इज हाउ ही वॉज एंगेजिंग, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, फ्लेक्स कर रहा था कि मैं ये हो गया वो हो गया, फिर इंटरनली रोटेशन करके उसने खुद के लिए ताज ले लिया, सो क्राउनिंग हो गया. क्राउनिंग होने के बाद उसने अपना किंगडम एक्सटेंड किया तो एक्सटेंशन, फिर रेस्टिट्यूशन किया, एंड देन देयर इज एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन. सो दीज आर द कार्डिनल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द लेबर. नॉर्मल लेबर में रिजिड मैन्यूअर करोगे. ओके, सो देयर इज एक्टिव फेज, लेटेंट फेज. एक्टिव फेज में व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टेड लेबर. प्रोट्रैक्टेड लेबर मतलब क्या, अभी नॉर्मली लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर होगा. नॉर्मल इज लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर. दिस इज डायलिटेशन. ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया देन इट कैन बी प्रोट्रैक्टेड. अरेस्ट, अरेस्ट ऑफ एक्टिव फेज मतलब 4 आवर्स हो गए. There have been 4 hours, still there is no change in dilatation despite adequate contraction. मतलब यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग पर फिर भी डायलिटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. दैट मीन्स देर इज अ एक्टिव फेज अरेस्ट. कितना क्राइटेरिया देख रहे हैं हम लोग, 4 आवर्स के टाइम लाइन दिख रहे हैं. देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमने क्या किया, रिजिड मैन्यूअर किया टू डिलीवर द बेबी. पेरिनियम में वर्म कंप्रेसेस दिया. व्हाट यू आर नॉट डूइंग इस फंडल प्रेशर नहीं देंगे, लिथोटॉमी पोजीशन नहीं देंगे, रूटीन एपिजियोटॉमी इज नॉट डन. एपिजियोटॉमी इज डन इन ओनली एंड ओनली स्पेशल केसेस, रूटीनली नहीं करते हम लोग. नाउ AMTSL मतलब एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यू हैव टू बी वेरी क्विक. सो पहले 10 IU ऑक्सीटोसिन दोगे. 10 IU ऑक्सीटोसिन within 1 minute. Within 1 minute you are giving 10 units of oxytocin. Remember, कभी भी बोलस नहीं देना है. You can always, it is like IM दो या IV दो. IV में भी इन्फ्यूजन दोगे, बोलस नहीं देना है. ठीक है, बोलस क्रॉस. सो पहले 1 मिनट में ऑक्सीटोसिन दे दिया. उसके बाद नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन डू कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन को वी कॉल्ड इट एज मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयूज. ये मेथड का नाम है. देन क्या करोगे, इंटरमिटेंटली यूट्राइन टोन को तुम लोग असेस करोगे. असेसिंग द यूट्राइन टोन, यूट्राइन टोन को असेस करना है, मसाज नहीं करनी है. सो व्हाट यू डोंट डू इज यूट्राइन मसाज. एंड फोर्थ थिंग इज डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग. डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग टू प्रिवेंट एनीमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज, ये सब के लिए यू विल डू डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग. Where will you not do delayed cord clamping? RH ICU इम्यूनाइजेशन में नहीं करोगे. बर्थ एस्फेक्सिया, इधर बच्चे को सांस लेने को नहीं हो रहा है और तुम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग करोगे, नहीं करोगे, यू वोंट डू इट. HIV पॉजिटिव है, यू वोंट डू इट. सो एक्टिव मैनेजमेंट में 4 चीज़ें ही करनी है. 10 IU ऑक्सीटोसिन देना है 1 मिनट में, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, यूट्राइन टोन असेसमेंट, डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग. ये तो लेबर. हाँ, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम. सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में क्या होता है, लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन पे यू हैव टू कीप द पर्सन. दिस पेज इज नॉट ऑफ यूज. नेक्स्ट पेज, पार्टोग्राम. ओके, मोल्डिंग के भी स्टेजेस होते हैं. 0 स्टेज, बोन्स अलग अलग है, बोन्स आर सेपरेटेड. अभी स्टेज 1 में क्या होगा, बोन्स दे आर टचिंग ईच अदर. Suppose these are the bones. So bones, they are touching each other.
okay, but they can be separate. So this is a stage 1. Now stage 2 क्या है? Stage 2 में bones are now overlapping. So ये क्या है? This is stage 2 when the bones are overlapping. And stage 3 is when bones are overlapping severely. So severe overlapping is stage 3. Ischial spine देख सकते हो यहाँ पे. फिर you will check for intact, clear, bloody meconium, and A for absent. PPH, postpartum hemorrhage. If greater than 500 ml vaginal delivery में या फिर greater than 1000 ml cesarean section में there is a primary PPH. Most common cause is atony. What is the immediate step? You'll call for help, you'll ask for resuscitation, Foley's दोगे, abdominal palpation करोगे. Abdominal palpation में if the uterus is atonic, you'll feel it. It's a atonic PPH. Uterine massage कर दिया. फिर oxytocin infusion. Now you're giving 40 units in 500 ml NS. Uterine massage की, oxytocin दे दिया 40 units का. उसके बाद you're giving injection methargin 0.2 mg IV every 2 to 4 hours, and then you are going for a blood transfusion. Uterus is still atonic, then what you'll do, you'll give 250 microgram carboprost IM every 15 minutes, 8 doses दोगे, maximum 2 mg. 800 microgram misoprostol rectally दोगे. यूट्राइन टैम्पोनेट में क्या करना है? सूचर्स देने हैं. सूचर्स में बिलिंच हो सकता है, चॉय हो सकता है, हेमन होगा. तो 3 टाइप्स ऑफ सूचर्स है. फिर उसके बाद सर्जरी में यू विल डू डीवैस्कुलराइजेशन. उसके बाद सर्जरी में हिस्टेक्टोमी. Now if I consider while doing an abdominal palpation, if uterus is hard, well contracted, it's a traumatic PPH. So you will go for exploration. Cervicovaginal inspection करोगे, hemostatic suture on the tear site, stitching, perineal vaginal cervical tears होगा. There is suspicion of uterine rupture, emergency laparotomy. There is no rule. Oopsie, बच गया भाई. Collapse, blunder. All the words can be said. कौन है भाई ये जिसने स्टॉप म्यूटेशन कर दिया? टर्मिनेशन ऑफ कोडॉन इज नॉट ऑलवेज अ स्टॉप. इट कैन बी अ नॉनसेंस म्यूटेशन एंड ऑल्सो, क्योंकि सिंगल म्यूटेशन है जो टर्मिनेट हो रहा है, सो इट्स अ नॉनसेंस म्यूटेशन. Okay.
Contraindication for methargin के contraindication is hypertension, PAD, RH isoimmunization, heart disease, twins. PGF2 alpha carboprost है, उसका contraindication is asthma. Shoulder dystocia. Shoulder dystocia, it's an obstetric emergency, so you should call for help. You will evaluate for episiotomy. Legs का posture क्या होगा? Macrobot position होगा. You will give a suprapubic pressure. Rotate the posterior shoulder, that's a Wood's corkscrew. So shoulder dystocia important topic है. तो क्या होता है? You will evaluate कि episiotomy कैसे दिया. इम्पॉर्टेंट पोजीशन इज मैक्रोबर्ट्स, ठीक है, ये लेग्स के रिलेटेड पोजीशन होगी. फिर हम देंगे सुप्राप्यूबिक प्रेशर दे दिया. फिर उसके बाद वुड्स कॉर्कस्क्रू. व्हाट इज दिस? यू विल रोटेट पोस्टीरियर शोल्डर को रोटेट कर दिया तो उसके मैन्योर को हमने वो नाम दिया. ओके. If we roll the patient on the four limbs, rolling on the four limbs, it is called as Gaskin. If you put the baby back, क्या करोगे? हेड वापस अंदर डालोगे, तो that's a way कि तुम लोग अभी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करोगे. You will going for a LSCS, so that's a Zavanelli manure. मैक्रोबर्ट्स मैन्योर में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? दैट्स अ मेराल्जिया, दैट्स लैटरल क्यूटेनियस नर्व अफेक्टेड. यूट्राइन इन्वर्जन, सडन सीवियर पेन एब्डोमेन में, देयर कैन बी द शॉक प्रेजेंट. यूट्राइन फंडस नॉट पाल्पेबल एट द अम्बिलिकस. न्यूरोजेनिक है फॉलोड बाय हाइपोवॉलेमिक. शॉक के कैसे है? पहला न्यूरोजेनिक होगा फिर हाइपोवॉलेमिक होगा. सडन सीवियर पेन इन एब्डोमेन, शॉक, फंडस, यूट्राइन फंडस, इट्स नॉट पाल्पेबल. ओके. एट द अम्बिलिकस इट्स अ यूट्राइन इन्वर्जन. मैनेजमेंट में क्या करोगे? जो ऑक्सीटोसिन दे रहे हो फॉर अ कॉन्ट्रैक्शंस, यू विल स्टॉप इट इमीडिएटली. मैनुअल रिप्लेसमेंट करोगे बाय अ जॉनसन्स टेक्निक. दैट्स अ ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन इन्वर्जन. फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड शॉक प्लस डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी प्लस नो फीवर. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड शॉक होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी डिलीवरी की 30 मिनट्स बाद ही. देयर इज नो फीवर. नाउ यूटेराइन रप्चर, intense pain, history of C-section, myomectomy, fetal parts palpable superficially, that's a uterine rupture. फिर आता है changes in uterus after delivery, it undergoes involution. Day 1 में 1 finger breadth below the umbilicus. Day 2 पे क्या होगा? 2 finger. पहले Day 1 पे 1 finger breadth below the umbilicus, Day 2 पे 2 finger. एट द एंड ऑफ 2 वीक्स के बाद क्या होगा कि तुम्हारा यूट्रस इट विल बिकम अ पेल्विक ऑर्गन. एब्डोमेन पे पाल्पेबल नहीं होगा. एंड 6 to 8 वीक्स में इट विल बिकम लाइक प्री प्रेग्नेंट साइज यूट्रस. नाउ डॉपलर में भी इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट. क्या होता है? देयर कैन बी अ नॉर्मल, एब्सेंट, एंडायस्टोलिक, रिवर्स एंडायस्टोलिक. सो अगर एब्सेंट होगा तो ग्रेटर देन 34 वीक्स में टर्मिनेट करोगे. लेस देन 34 वीक्स में यू विल गिव स्टेरॉइड्स फॉलोड बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. रिवर्स में ग्रेटर देन 32 वीक्स में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेस देन 32 वीक्स में स्टेरॉइड्स दैट इज फॉलोड बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक होगा तो अर्ली टर्मिनेशन होता है. एब्सेंट में 34 वीक्स तक यू विल वेट. यूटेराइन आर्टरी प्रिडिक्ट अर्ली ऑनसेट प्रीक्लैम्पिया. एमसीए डॉपलर में एमसीए का रोल क्या होता है? इट विल टेल यू एनीमिया है क्या, आईयूजीआर है. आईयूजीआर में ब्रेन स्पेरिंग होगा तो एमसीए में पीएसवी, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी विल इंक्रीज. मॉडिफाइड बिशप स्कोर, रेस्ट इज अ हिस्ट्री. Let's end the live session today here only. Dinner time.
बिशप स्कोर कंप्लीट करके ही जाते हैं फिर, रुको। सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल लेंथ, इफेसमेंट, स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, consistency of cervix, position of cervix. So remember dilatation, length, effacement, station, consistency and position. So 0 में क्या होगा, डायलिटेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर तक, इफेसमेंट लेस देन 30 सेंटीमीटर, स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट -3, -3 से -2, -1, फिर +1 +2। कंसिस्टेंसी पहले 0 में फर्म होती है, 1 में एवरेज होगा, 2 में सॉफ्ट हो जाएगा। पोजीशन, पोस्टीरियर पोजीशन इज 0 स्कोर, 1 इज मिड पोजीशन, 2 इज एंटीरियर। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइनोप्रोस्टॉन, मीजोप्रोस्टॉल इज PGE1, डाइनोप्रोस्टॉन PGE2। You have mifepristone, you have oxytocin, folase, stripping of membranes that will increase the local release of prostaglandin. So induction के लिए dinoprostol, misoprostol, mifepristone, oxytocin, folase and stripping of membranes. Then you have contraindication to IUL. Contraindications क्या हो गए, contracted pelvis है, contracted pelvis है तो यू वोंट बी डूइंग अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, यू विल गो फॉर LSCS क्योंकि मोल्डिंग है, कैप्यूट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंड्यूस करके ऑक्सीटोसिन वगैरह सब इट्स ऑफ नो यूज़। PP प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन, एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, वॉट्स है, CA सर्विक्स, माल प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स, वाजा प्रीविया, इन सब में यू वोंट डू इंडक्शन ऑफ लेबर, यू विल डायरेक्टली डू LSCS। Active HSV, viral warts, CA cervix, malpresentation, cord prolapse, vasa previa, PP and contracted pelvis। आगे का कल करते हैं।